کئی علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ انگریز کے خلاف فیصلہ کوئی لڑائی لڑی جائے. یہ کرتے کرتے کئی سال کا عرصہ گزر گیا. چنانچہ 1856 میں میرے دوستوں دلی کے علاقے میں تمام ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں مولانا جعفر تھانیشری، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد جامن شہید، یہ سارے لوگ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اس میٹنگ میں شریک ہوئے. مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں انگریز ہمارے سر پہ کھڑا ہے، انگریز نے پورے ہندوستان سے اپنی حکومت کا جال بچھا دیا ہے. فیصلہ کوئی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے اور انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. شاید مولانا نانوتوی نے یہ بات فرمائی تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، ہمارے وسائل بڑے تھوڑے ہیں. حضرت نانوتوی نے تاریخی بات فرمائی، فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر ہے. لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا. مولانا نانوتوی کی یہ بات موج کوثر اور اس کتاب میں شیخ اسلام نے لکھی ہے کہ بڑی عجیب بات تھی میرے دوستوں. شاید مولانا نانوتوی کی اس بات پہ جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دو لڑائیاں ہیں. ایک جنگ آزادی 1857 اور ایک تحریک ریشمی رومال. تحریک ریشمی رومال کی بنیاد بھی مولانا نانوتوی کے شاگرد مولانا شیخ محمود الحسن نے رکھی اور جنگ آزادی کی بنیاد بھی حاجی امداد اللہ کے شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے. میرے دوستوں یہ ہندوستان کی سب سے بڑی لڑائی جو انگریز کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی، جس کے بعد 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، جن کی ابھی میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میرے دوستوں 1857 کی جنگ آزادی کو آج پاکستان کا ایک طبقہ جس کو انگریزی ضروریت کا باپ ہر وقت محبوب رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی نہیں تھی، یہ غدر تھا. ہماری کئی کتابوں میں اس جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا جاتا ہے. غدر وہ لوگ نام دیتے ہیں آج بھی جو انگریزوں کی ذہنیت رکھتے ہیں. علماء اپنی آزادی کے لیے لڑائی کریں، یہ غدر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تحریک آزادی تھی جس کے سرکار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی تھی. میرے دوستو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیشری کے پاس تھی، ایک محاذ شاملی کے محاذ پر تھا، ایک قافلہ اس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. میرے دوستو آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لڑائی لڑی، منجنیقیں استعمال ہوئی، گولیاں سے ہوئی، علماء شہید ہوئے، مولانا محمد جامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے، حضرت نانوتوی خود زخمی ہوئے اور کئی بے شمار لوگ شہید ہو گئے. لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1857 کی اس عالمگیر جنگ آزادی میں علماء کو فتح نہیں ہو سکی. واضح بات ہے علماء کو فتح نہیں ہوئی. وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، لیکن نتائج تو برآمد نہیں ہوئے، فتح تو نہیں ہوئی، لیکن آزادی کا جذبہ جو اندر ہی اندر مچل رہا تھا، آزادی کی چنگاری جو سلجھ رہی تھی وہ سلجھتی رہی اور جذبہ بیدار رہا. علماء نے سر نہیں جھکایا، علماء نے گردن نہیں جھکائی. 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو گئی. انگریز نے وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کے اپنے وزراء سے اور مشیروں سے رپورٹ طلب کی کہ بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ان لوگوں نے، جس کا نام سب سے بڑا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ولیم میور، ہندوستان کا بہت بڑا ایک سیاستدانوں سے کہا جاتا تھا، اس نے وائسرائے برطانیہ کو جو رپورٹ بھیجی اس رپورٹ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جس میں مسلمان بہت زیادہ زندہ بیدار ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ مسلمانوں پہ حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت سے علماء کی گردنیں لٹکتی
करती हो। रामचंद्र कहता है उलमा को सूअरों की खानों में बंद करके चलते हुए तनूरों में डाला गया। रामचंद्र कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से डाला गया। रामचंद्र कहता है कि उलमा को हाथियों पे खड़ा करके दरख्तों से बांध कर हाथियों को नीचे से चला दिया गया। रामचंद्र कहता है कि ये लाहौर की तुम्हारी शाही मस्जिद, इसके शहर में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था और एक एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। रामचंद्र कहता है कि लाहौर के दरिया रानी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से बोरियों का निशाना बना दिया जाता। रामचंद्र कहता है कि मैं अपने खैमे में दिल्ली में गया तो क्या देखता हूँ कि मुझे महसूस हुआ कि मुर्दार की बदबू है। मैं अपने खैमे से पीछे चला गया तो क्या देखता हूँ कि आग के अंगारे पक रहे हैं और उन अंगारों के ऊपर 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन उलमा को अंगारों से डाला गया है। और कहता है कि मैंने मेरे देखते ही देखते 40 और उलमा को लाया गया और मेरे सामने उन उलमा के कपड़े उतारे गए। अंग्रेज ने कहा मौलवियों, जिस तरह इन 40 उलमा को आग से पकाया गया तुम्हें भी पका दिया जाएगा। एक आदमी तुम सिर्फ ये कह दो कि 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। रामचंद्र कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम है, मैंने देखा कि कोई आलिम पहले उलमा भी आग पर पक गए और दूसरे उलमा भी आग पर पक गए। एक भी आलिम ऐसा न था जिसने अंग्रेज के सामने गर्दन छुपाई। पाकिस्तान का कुछ ठेकेदार बनता है कि जनाब फला जगह पाकिस्तान बन गया, फला की कोशिश से पाकिस्तान बन गया। मैं समझता हूँ ये कोशिश मौजूद है, इन कोशिशों को हम जानते हैं, लेकिन मैं लोगों से पूछता हूँ जिनको आज अपने असलाफ की तारीख का पता नहीं है, बताओ पाकिस्तान बनाने में अगर इन्हीं लोगों का जिक्र आता है जिनका तुम जिक्र करते हो, तो ये जो 14,000 उलमा फांसी के तख्ते पे चढ़े, इनकी कुर्बानियां कहाँ चली जाएगी? ये किस लिए लड़े, ये किस लिए शहीद हुए? इन्होंने गर्दन किस लिए कटाई? क्या 14,000 उलमा फांसी के तख्ते पे चढ़े, इनकी कुर्बानियां कहाँ चली जाएगी? ये किस लिए लड़े, ये किस लिए शहीद हुए? इन्होंने गर्दन किस लिए कटाई? क्या पाकिस्तान बनाने की बुनियाद में इन उलमा की कुर्बानियों का कोई दखल नहीं है? ये अहमदुल्ला साहब जाति की कोई तारीख नहीं है कि जिसको अंग्रेज में हथकड़ियां पहनाकर एक गोरे के सामने जब पेश किया गया तो वो गोरा कर रोने लगा। उसने कहा शाह साहब आप तो मेरे उस्ताद हैं, मैंने तो मद्रास में आपकी अरबी की किताब पढ़ी है, आपको गोली का हुक्म है, ये आपके वारंट है, आप एक दफा कह दो कि मैं 1857 की जंग आजादी में नहीं था, अभी छोड़ देता हूँ। मौलाना अहमदुल्ला शाह ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा और मेरे शागिर्द अंग्रेज, मैं जान को बचाने के लिए रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये लोग बड़े थे। हाय हाय, किसी ने कहा हाय जी हरते तमन्ना से ज़बा की दूरियां और सख्तियां, बिछवाइयां, पाबंदियां, मजबूरियां, याद अय्याम जफा, आखिर भुलाएं तो भुलाएं किस तरह, और दिल फरंगी से लगाएं तो लगाएं किस तरह? उन लोगों से दिल किस तरह लगाएं, किस तरह उनकी ज़ुर्रियत को अपनाएं, किस तरह उनके ज़हन को अपनाएं, किस तरह उनकी बातों को तस्लीम किया जाए। मेरे दोस्तों, 1857 की जंग आजादी में मौलाना जाफर थानीश्री को फांसी का हुक्म हुआ और मौलाना याहिया अली की दाढ़ी के बाल काटे गए। जब फांसी का हुक्म हुआ और उनको अम्बाला की जेल से लाहौर लाया गया और लाहौर कोट लखपत जेल में इस हाल में लाया गया। हाय हाय, मौलाना थानीश्री तारीख काला पानी में लिखते हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियां, हमारे पाँव में बेड़ियां, हमारे जिस्म पे जोड़ियाना लिबास, हमारे कमर पे लोहे की सलाखें। जब कोट लखपत जेल में अम्बाला से लाहौर तक पैदल लाया गया, जब कोट लखपत जेल में दाखिल होते ही जेल का सुपरडेंट कहने लगा ये मुल्ला ऐसे भाग नहीं आएंगे, इनको एक एक लोहे के पिंजरों में इनको डाल दिया जाए। मौलाना थानीश्री कहते हैं हम 3 उलमा के लिए अंग्रेज ने लोहे के पिंजरे बनाए, हमारे हाथों से लहू बहता था, हमारे पाँव से लहू बहता था, हमें लोहे के पिंजरों में डाला गया और उन पिंजरों के अंदर लोहे की चोटदार सलाखें लगाई गई। हम आसरा नहीं लगा सकते थे, हम बैठ नहीं सकते थे और उन पिंजरों को तहखाने में रखा गया और उसके बाद उन्हीं पिंजरों को मालगाड़ी के डब्बे में डाल दिया गया और कहा गया कि मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट जेल में इन उलमा को फांसी दी जाएगी। वो कहते हैं, मौलाना थानीश्री फरमाते हैं कि हमें मालगाड़ी के डब्बे में डालकर वो डब्बा मुल्तान भेजा गया और 3 महीने में वो डब्बा लाहौर से मुल्तान पहुंचा। कहीं महीना ठहरता है, कहीं 10 दिन ठहरता है, धूप का वक्त है, गर्मी का समय है। वो कहते हैं हमारी आंखों पे पट्टियां बांधकर मुल्तान के स्टेशन से हमें डिस्ट्रिक्ट जेल तक लाया गया और हमें शाम को बताया गया कि सुबह को तुम्हें फांसी हो जाएगी। हमने रात बड़ी खुशी मनाई, सुबह का वक्त हुआ, गोरा हमारे कमरे में आया और उसने कहा मौलविया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो फांसी का हुक्म हो गया, तुम खुशियां मनाते हो। मौलाना थानीश्री ने बड़ी अजीब बात कही, फरमाया हम इसलिए खुशी मनाते हैं, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम समझते थे कि बिस्तर पे मौत आएगी तो शायद हमारी गुनाहों की बख्शिश हमारी हो सके या ना हो सके, अब तो शहादत की बात होगी और जब तुम फांसी दोगे इधर हम रसूलुल्लाह के होगे
हाय हाय अंग्रेज गोरे ने कहा मौलवियों, जिस मौत से तुम खुश होते हो तुम्हें वो मौत भी नहीं दी जा सकता है। उसने कहा तुम्हें 14-14 साल के लिए काला पानी की सजा दी जाती है। काला पानी। मौलाना थानीश्री ने इस मौके पर कही कि काला पानी में बड़ा अजीब शेर लिखा है। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे जब फांसी का हुक्म बदल गया मेरा, तो पहले फांसी का हुक्म था, जब बदल गया तो बेसाख्ता मेरी जबान पे आया कि मुस्तहिक के दार को हुक्म नजरबंदी मिला। मुस्तहिक के दार को हुक्म नजरबंदी मिला। क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रहती। अगर फांसी हो जाती तो रिहाई हो जाती। उन्होंने फांसी को, मौत को रिहाई के काबिल किया। क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। आए वो लोग बड़े अजीब थे। मौलाना फरीदरी को जब काला पानी ले जाया जाने लगा, उनके बच्चों को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया। मौलाना फरमाते हैं कि मेरा 8 साल का छोटा सा बच्चा जेल की सलाखों में जब मेरे सामने आया और मेरे हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां देखकर मेरा बच्चा बारों कतार रोने लगा, मेरी बीवी भी रोने लगी, तो मैंने कहा बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे बाप की जिंदगी खुदा ने बचा ली तो वापस आएगा, अगर न बचाई तो होने कोर्ट से मुलाकात कर लूंगा। बड़ी अजीब बात थी मौलाना थानीश्री ने कही। मेरे दोस्तों, ये लोग बड़े अजीब थे। इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां थी। 1867 तक ये कुर्बानियां इन उलमा ने दी। जब 1867, मेरे दोस्तों 1864 से लेकर 1867 तक पूरे हिंदुस्तान में उलमा को अंग्रेज ने अपने दाम में खत्म कर दिया। वाकयातन उलमा हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान में 1867 में कोई दीनी मदरसा नहीं था। आप हैरान होंगे कि 1601 में जब अंग्रेज आया था तो 1000 मदरसा दिल्ली के शहर में था, लेकिन सिर्फ 1867 में एक मदरसा भी पूरे हिंदुस्तान में बाकी नहीं। अंग्रेज ने मदरसा रहीमिया शाहवली के मदरसे से बलडोजर फिरा दिए, शाहवली के मदरसे को खत्म कर दिया, बड़े बड़े मकातब को खत्म कर दिया। जब 1867 में कोई मदरसा बाकी न रहा, उलमा खत्म होने लगे, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मौलाना मोहम्मद को बाकी रखने के लिए देवबंद की बस्ती में एक दिन मदरसे की बुनियाद रखो। मौलाना ननोत्री ने हजूर की बशारत पर 30 मई 1867 15 मुहर्रम अल हराम को हजूर की बशारत से देवबंद की बस्ती में अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी। उसी मदरसे को दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। उसी से पढ़ने वालों को उलमाए देवबंद कहा जाता है। मेरे दोस्तों, उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि अंग्रेज का मुकाबला किया जाए। उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि अंग्रेजी तमद्दुन को खत्म किया जाए। उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि मुसलमान कौम अपने तहजीबी वर्षा से हम किनार हो सके। मेरे दोस्तों, मौलाना कासिम नानोतवी, यहाँ बात जरा समझने की है। मौलाना नानोतवी एक उस्ताद मौलाना ममलूक अली के शागिर्द थे और मौलाना नानोतवी के साथी हम सबक के मौलाना ममलूक अली के 2 शागिर्द थे। एक मौलाना कासिम नानोतवी